फेडरेशन डेफ फेडरेशन से पधारे हुए अतिथिगण को मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच पे आएँ। महेंद्र पाल सिंह जी और सुरेश जी। एशियाई ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों की भांति ग्रीष्म डेफ ओलंपिक खेलों का आयोजन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ICSD द्वारा 4 वर्ष के समय अंतराल में कराया जाता रहा है। वर्ष 2021 के डेफ ओलंपिक खेलों का आयोजन 1 मई से 15 मई तक लैटिन अमेरिकी देश ब्राज़ील के शहर कैसियस डी सोल में किया जा रहा है। इस खेल आयोजन में अब तक का सबसे बड़ा 96 सदस्यीय भारतीय दल प्रतिभाग हेतु प्रस्थान कर रहा है। भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो, कराटे, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, कुश्ती एवं गोल्फ की स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। भारतीय डेफ ओलंपिक दल की रवानगी एवं उत्साहवर्धन हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित रवानगी समारोह के अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय श्री निशीथ प्रमाणिक जी, महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण श्री संदीप प्रधान जी, संयुक्त सचिव खेल श्री सिद्धार्थ सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथि एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारीगण, ग्रीष्म डेफ ओलंपिक खेल 2021 में भाग लेने हेतु चयनित सभी खिलाड़ीगण, कोचेज साहबान, चिकित्सीय सहायक दल, भारतीय बधिर क्रीड़ा परिसंघ के पदाधिकारीगण एवं विभिन्न समाचार पत्रों और चैनलों से पधारे हुए पत्रकारगण तथा समस्त उपस्थित जनसमुदाय का भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय बधिर क्रीड़ा परिसंघ के चेयरमैन श्री महेंद्र सिंह जी को कि इस अवसर पर अपना संबोधन प्रस्तुत करें। श्री महेंद्र सिंह जी। Honorable Anurag Singh Ji Thakur, Ministry of Youth Affairs and Sports, Shri Nisit Pramanik, Minister of State of Youth Affairs and Sports, Mr. Alice Singh, Joint Secretary, Ministry of Sports, Mr. Sandeep Pradhan, Director General, Sports Authority of India, and respected sports persons, coaches, and guests. This is the rarest occasion for the deaf community who have also seen this function first time, which is called as sending ceremony. I thank the ministry for organizing this program, which would go a long way for obtaining positive results
in sports of the deaf. I would also like to thank the Ministry of Sports that they have agreed to send their officials as observers who would visit Brazil and observe international events of sports along with sign language, and on their return, they would certainly invent new things for international events of the deaf sports, which will also bring positive results for the deaf in sports world. We have been progressing in the name of All India Sports Council Deaf. In 2017, we sent 46 persons contingent, and we obtained 5 medals, 1 gold, 1 silver, 3 bronze. This time, there's a contingent of 67 sports persons who are going, and we hope that we have potentiality to get more and more medals this time. We have been promoting deaf sports from time to time, and our 3-4 persons who were outstanding in Deaf Olympics, which included Rajiv Bagga in badminton, Shunay Taranath in swimming, TV Manor volleyball, P.K. Jason athletics. Then came the era of Mr. Varinder Singh wrestling, who accompanied us to Deaf Olympics to represent India in 2005, 2009, 2013, and have been getting golds throughout. Along with that, Mr. Rohit Bakar, he also got golds and obtained distinguished results, first in ordinary category, general category, and then later on when Arjuna Award was introduced to deaf community, these two were the extraordinary sports persons. I would request both of them, with the permission of the Honorable Ministry, to just come for a minute. We want a clap for them because they are very extraordinary sports persons. Rohit Bakar and all right, it's all right. I stand corrected, sir. Then we had Anjan Bhattacharjee in cricket, Satish Kumar athletics, Shunay Taranath, and Rajiv Bagga in swimming and badminton in Arjuna Awards. They obtained it only in the category of deaf handicaps. I'm sure that India will further progress in obtaining more medals this time because our contingent is quite bigger than earlier times. I'll be failing in my duty if I do not appreciate the work done by the officials of ministry as well as Sports Authority of India in arranging trials for deaf sports as well as training programs for deaf sports persons. I would also like to thank Mr. Sultan Singh Ji, Secretary General of National Rifle Association of India, who has been very kind to us and made arrangement with us to teach our and provide coach to our deaf shooters. This time there are 10 shooters going. We hope to achieve some medals. At the end, I would like to give good wishes to all the deaf sports who are going to participate in Brazil and wish them fearless in their field of activity and bring maximum positive results for medals for the tricolor of India, which should go on higher and higher. With all these words, I thank to all of them who are going there, and I especially thank the coaches and to make training to these people so that we should get better results. Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद श्री महेंद्र सिंह जी। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय श्री निशित प्रमाणिक जी से कि उपस्थित जनमानस को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय मंत्री जी। नमस्कार। ब्राजील में आयोजित होने वाली डेफ ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों को मैं पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मंच पर उपस्थित माननीय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और खेल एवं युवा कार्यक्रम की माननीय मंत्री मेरे अग्रज अनुराग ठाकुर जी को और मंच पर उपस्थित सारे सम्मानीय व्यक्तिवर्ग को मैं अपना हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं कि डेफ ओलंपिक में जो कॉन्टिंजेंट इस प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करने के लिए जा रहे हैं, सभी को उत्साहवर्धन के लिए और सभी को शुभकामना देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। खेल जगत का जो परिवर्तन हम लोग पिछले कई वर्षों से देखा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दूरदृष्टिता, खेल के प्रति सम्मान और खिलाड़ियों के प्रति उनका जो श्रद्धा है, उस विरासत को किस तरह से हमारे आदरणीय खेल मंत्री की जो अनुराग सिंह जी है, उनका निष्ठावान हाथों से किस तरह से वो विरासत आगे बढ़ रहा है, ये हम सभी लोग देख रहे हैं। चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरालंपिक हो या फिर डेफ ओलंपिक हो, हम लोगों ने देखा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चीयर फॉर इंडिया का नारा लगाया और हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से आदरणीय खेल मंत्री जी ने कॉन्टिंजेंट जब देश से विदेश में जा रहा था, टोक्यो में जा रहा था, उस समय में उन लोगों को एनकरेज करने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचा और चीयर फॉर इंडिया का नारा लगाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को भारत को ऐसा एक मार्गदर्शक मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा, और खेल मंत्रालय को ऐसा एक अभिभावक मिला है, एक निष्ठावान, ऊर्जावान एक मार्गदर्शक मिला है, जिनका मार्गदर्शन में भारत की खेल क्षेत्र में विकास निरंतर हो रहा है। एक खिलाड़ियों की जो इमोशंस है वो एक खिलाड़ी ही समझ सकते हैं, एक खिलाड़ी की स्पिरिट को एक खिलाड़ी ही समझ सकते हैं, और हमारे आदरणीय खेल मंत्री उस परिभाषा को समझा और भारत की हर एक क्षेत्र में, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, चाहे पूर्व हो या पश्चिम, इस एक अलग जो है महल वो करने का प्रयास किया। आज हम बड़े प्रसन्न हैं कि डेफ ओलंपिक में जाने वाला सबसे बड़ा कंटिजेंट के सामने हम आज अपना जो वक्तव्य है वो पेश कर रहे हैं। मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि अगर भारत के युवा पीढ़ी के लिए, भारत के युवा खिलाड़ी के लिए, भारत की यंग इंडिया के लिए अगर कोई सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है तो वो आप लोग उन भारतीयों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए और युवा के लिए बन सकते हो। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हर किसी जो आप लोगों की बाधाएं हैं उसको ओवरकम करते हुए जैसे आप लोगों ने आगे बढ़ा, जैसे आप लोगों ने दिखाया कि किस तरह से जो बाधाएं आते हैं उसको ओवरकम करके जीत लाया जाते हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अभी तक ब्राजील नहीं पहुंचा, लेकिन आप लोगों के अंदर जो जुनून है और जो जज्बा है, जिस तरह से आप लोग अपने आप से प्रतिज्ञा कर लिया है
कि हम लोगों को ब्राजील जाना है, जीतना है और भारत की झंडा को शान से वहां पर लहराना है। मैं सोचता हूं आप लोगों को मेडल लाने से पहले भारत का जय हो गया है। और सबसे बड़ा बात यह है कि एक के बाद एक ओलंपिक में, उसके बाद फिर पैरालंपिक्स में भारत का अभी तक का सबसे ज्यादा जो मेडल है वो अभी तक आया है। मेडल सिर्फ मेडल नहीं होता है, वो उसके साथ इमोशंस जुड़ा रहता है, उसके साथ खिलाड़ियों का साल भर का, बरसों का, कई बरसों का मेहनत, खून पसीना उसके साथ जुड़ा रहता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से इस बार डेफ ओलंपिक का सबसे बड़ा कंटिजेंट भारत से जा रहा है, सबसे ज्यादा मेडल भी इस बार आएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आदरणीय खेल मंत्री अनुराग जी यहां पर उपस्थित है, जो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है, जो खिलाड़ियों के हर एक मन की भाषा, परिभाषा को समझती है, इमोशंस को समझती है। आज मैं सब ये जो भव्य सभा का आयोजन किया गया है, जो आप लोगों को जाने से पहले आप लोगों के मिलन उत्सव का आयोजन किया गया है, मैं इसका भी अपेक्षा करूंगा कब आप लोग वापस आएंगे और आप लोगों से फिर से पुनर्मिलन होगा और तब हम लोग जय का जो उत्सव है वो भी एक साथ निभाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। कोटिसा नमन परम आदरणीय मंत्री जी। इसी क्रम में मैं अब निवेदन करना चाहूँगा इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि अपने संबोधन से भारतीय दल के सदस्यों का उत्साहवर्धन व मार्गदर्शन करने की कृपा प्रदान करें। डेफ ओलंपिक्स की सेंड ऑफ सेरेमनी के इस अवसर पर सम्मानित मंच, उपस्थित सभी अधिकारीगण, खेल संघों के पदाधिकारी, खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, देशवासियों की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से आपको डेफ ओलंपिक्स के जो इस कंटिंजेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। मुझे आज भी याद है टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स पार्लियामेंट सेशन के दौरान हो रहा था और कोई सुबह ऐसी नहीं थी जब हमारी एक छोटी मीटिंग सेशन से पहले होती है। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन सुबह तक का क्या क्या हुआ उसका उल्लेख उस मीटिंग में ना करते। जिस देश के प्रधानमंत्री की रुचि खेलों में इतनी हो, उस देश के खिलाड़ी पीछे नहीं रह सकते हैं। आप अभी से ही बहुत नाम कमाया है, आप मेडल भी लेकर आओगे, इसके लिए मुझे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्राज़ील के काशियास डू सुल में 65 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट हमारा यहाँ से जा रहा है, जो आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट है। इसके अलावा 17 कोचेस और 11 ऑफिशियल्स भी साथ में जा रहे हैं। ये केवल आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट ही नहीं, सबसे युवा कंटिंजेंट भी है। युवा भारत के युवा प्रतिनिधि मेरे सामने बैठे हुए हैं और जिन खिलाड़ियों का डेब्यू डेफ ओलंपिक्स में होने जा रहा है, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, हार और जीत इसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं। आपको अपना 100% देना है, पूरी एफर्ट्स लगानी है। और किसी भी खेल में बहुत सारे खिलाड़ी एक ही स्तर के होते हैं,
लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होगा, इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स, जो मेंटली स्ट्रांग होगा वही उस समय अगर खेल में थोड़ा पीछे भी होगा लेकिन उसमें ताकत, मेंटली टफ होगा, तो वापस उभर कर बाहर आकर वो जीत सकता है. सो यू हैव टू बी फिजिकली एज वेल एज द मेंटली स्ट्रांग ड्यूरिंग दैट टाइम. और हमारे, जैसे मैंने पहले कहा कि 11 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं और इसमें हमारे 65 खिलाड़ी जा रहे हैं. अच्छी बात तो ये है कि जहां एक और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डेफ ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए हैं, मैं महेंद्र सिंह जी और इनकी टीम को उसके लिए बधाई देता हूं, वहीं पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से भी खिलाड़ियों के चयन की बात हो, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, उनकी ट्रेनिंग की बात हो, 30 दिन के नेशनल कैंप की बात हो जो 5 सेंटर्स में लगाया गया, या फिर उनके लिए अलग अलग सुविधाएं देने की बात हो, चाहे किट्स, सेरेमोनियल ड्रेस, ये सारा भारत सरकार ने भी अपनी ओर से मदद करने का प्रयास किया है. मैं आशा करता हूं आपको हर तरह की सुविधा देने का जो प्रयास हुआ वो ठीक रहा होगा. कुछ कमी होगी तो हम उसमें और सुधार करने की आवश्यकता करेंगे. 2017 में टर्की में 46 लोगों का, 46 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट गया था, 5 मेडल जीत कर लाए थे. इस बार बगैर किसी दबाव के, मैं तो यही कहूँगा बगैर किसी दबाव के, कोई स्ट्रेस नहीं, सबसे बड़ा कंटिंजेंट है तो सबसे बड़ी जीत भी दर्ज करके आएंगे. इंडिया विल बी द नेक्स्ट बिग स्पोर्टिंग पावर हाउस. चाहे वो ओलंपिक्स की बात हो, पैरालंपिक्स की बात हो, डेफ ओलंपिक्स की बात हो, किसी भी खेल की प्रतियोगिता देश और दुनिया में होगी, अब भारत रुकने वाला नहीं है, भारत के खिलाड़ी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारत के खिलाड़ियों ने मन बना लिया है कि ये शताब्दी हमारी होगी और खेलों में हम परचम भारत का लहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे, दूसरी धरती पर जाकर भी करेंगे. और जिस देश में टॉप से बॉटम की अप्रोच की मैं बात पहले करूं, प्रधानमंत्री खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, खिलाड़ियों से सीधी बातचीत करते हैं, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं खड़ी करते हैं, हमारे खेल संघ संगठन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो अब बॉटम टू टॉप अप्रोच भी होनी चाहिए कि खिलाड़ियों की भी उतनी ताकत, नीचे उतने इवेंट्स, और उसी तरह से हम देश को ऊपर आने, मेडल टैलीज में ऊपर लाने का काम करेंगे. आप अभी, मेरे लिए तो आप अभी से ही चैंपियन हैं, क्योंकि 130 करोड़ के देश में भारत की टीम में आना, देश का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसके लिए आपको शुभकामनाएं, और आप भविष्य में इस गेम्स में और शौर्य और ग्लोरी आपको मिले और आप नाम कमा कर आएँ और इतिहास रचने का काम करें. इन्हीं शब्दों के साथ आने वाली खेलों के लिए डेफ ओलंपिक्स ब्राज़ील में जो होने जा रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. जय भारत, जय हिंद. कोटिशः धन्यवाद माननीय मंत्री जी. और अब मैं सभी भारतीय दल के सदस्यों एवं मंत्रीद्वय तथा अन्य गणमान्य अतिथिगण को समूह फोटो के लिए आमंत्रित करता हूं. इस क्रम में सबसे पहले एथलेटिक्स एवं गोल्फ के खिलाड़ी आगे आएंगे समूह फोटो के लिए.
कोचेस ना कंटिजेंट के साथ कोच कर लीजिए, वो गेम के कोच का जरूरी है। बैडमिंटन के खिलाड़ी कृपया आगे आए। बैडमिंटन के बाद जूडो के खिलाड़ी तैयार रहेंगे। जूडो के बाद कराटे और कुश्ती के खिलाड़ी कृपया आगे आ जाएंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ निशानेबाजी के खिलाड़ियों को। स्विमिंग के तैराकी के खिलाड़ी तैयार रहेंगे। निशानेबाजी का समूह फोटो खत्म होते ही आप कृपया आगे आएंगे। टेबल टेनिस एवं टेनिस के खिलाड़ी भी इसी के साथ तैयार रहेंगे।
टेबल टेनिस एवं टेनिस के खिलाड़ी और इस समूह फोटो के साथ मैं गुजारिश करूंगा जितने भी हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले, जितने भी खिलाड़ी ध्यान देंगे, जितने भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं वो सभी एक साथ आगे आएंगे और मंच के ठीक सामने एकत्रित होकर माननीय मंत्री द्वय के साथ एक सबका समूह फोटो होगा। इस ग्रुप फोटो के बाद केवल खिलाड़ी जो 65 खिलाड़ी हैं वो आगे आएंगे मंच के सामने माननीय मंत्री द्वय के साथ ग्रुप फोटो के लिए। केवल खिलाड़ी आएंगे आगे, जो 65 एथलीट हैं जो जा रहे हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वो कृपया आगे आएंगे। चलेगी क्या? कवर हो पाएगा? बंदे तो आगे खड़े हैं। ये एक दो बोतल लगेगी। इस ग्रुप फोटो में केवल खिलाड़ी भाग लेंगे। मैं अन्य ऑफिशियल से निवेदन करूंगा कृपया अपने स्थान पर रहें। बोल ही नहीं पाता है, बेचारा बोल नहीं पा रहा है। आगे से हट जाइए प्लीज। आगे से हट जाइए। ठीक है यार।
मैडम आगे से हट जाइए। भैया बैठ जाओ आप।